Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about vertebrate respiratory system and different modes in vertebrates for respiration. Vertebrates को दो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, aquatic vertebrates and terrestrial vertebrates. Aquatic vertebrates can respire in various ways, for example through their body surface, external filamentous gills, internal lamellar gills, या कुछ जो बाद में जिन्होंने एक्वेटिक हैबिटेट या एक्वेटिक लाइफस्टाइल अडेप्ट किया सच एज मैरीन मैमल्स, तो उनके अंदर आ जाते हैं बेटा लंग्स. यहाँ पे दो तरह की लाइफ मोड्स का जिक्र किया गया जो ब्रीदिंग के रेफरेंस से हैं. वन ऑफ देम इज बायमोडल ब्रीदिंग एंड अदर इज ट्राइमोडल. बायमोडल का मतलब है सच एज एम्फीबियंस या क्रैब्स, सैलमेंडर, बार्नेकल्स, some mollusks, as well as fishes. They use gills for breathing in water and they use lungs for breathing in air. Such lifestyle in which there are two modes of respiration, it's known as bimodal. And trimodal क्या है? Trimodal में skin additionally एक life mode या एक pattern के तौर पे आ जाता है for breathing purpose. जो organism skin को भी use कर रहे हैं for breathing, they are known as trimodal. Salamanders, crabs, barnacles, they are bimodal organisms. जबकि कुछ एम्फीबियंस में स्किन भी एडिशनली यूज हो रही होती है. अगर स्किन भी एडिशनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के तौर पे यूज हो रही है, दैट्स नाउन एज ट्राइमोडल वे ऑफ रेस्पिरेशन. बायमोडल ब्रीदिंग वाज एन इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी adaptation that was made possible due to evolutionary transition between aquatic and terrestrial conditions, terrestrial habitats. Basic changes, fundamental changes in the structure and function of the respiratory organs accompanied the transition from water to air breathing. जाहिर एयर की रिक्वायरमेंट्स, एयर की गैसेस कंसंट्रेशन, एयर के अंदर डिफ्यूजन एबिलिटीज वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू एक्वेटिक हैबिटेट या एक्वेटिक एबिलिटीज. दैट्स व्हाई ऑर्गेनिज्म जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल को एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में मॉडिफाई किया फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल कंडीशन, उनको रिस्पेक्टिव चेंजेस भी करना पड़ी इन देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. और इसमें हमारे पास टेरेस्ट्रियल कंडीशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो मेन ग्रुप्स हैं वो हैं हमारे पास रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. प्रीवियस स्लाइड के रेफरेंस से लंग फिशेस का जो जिक्र आया था, ये लंग फिशेस शोन है और ये बायवेल्स जो हम बात कर रहे थे कि जिनमें बायमोडल ब्रीदिंग का पैटर्न जो है वो डेवलप हुआ है. Some vertebrates that have lungs or gills, such as some aquatic turtles, salamanders with lungs, snakes and fishes, as well as some mammals, they can use their skin as a way of respiration. और बेटा अगर वो skin को respiration के लिए use कर रहे हैं या integumentary system को gaseous exchange या supplementary gaseous exchange system के तौर पे use कर रहे हैं, तो ये भी उनका एक mode है respiration के लिए. As shown on the right side, ये turtle है, ये water snake और ये मैरीन मैमल्स की बात की गई है जो अपनी स्किन यानी इंटेगुमेंट्री सिस्टम को भी सम टाइम गैसेस एक्सचेंज के लिए, रेस्पिरेशन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. However, cutaneous exchange is most highly developed in frogs, toads, as well as lungless salamanders and newts. ये कुछ ऐसी टाइप्स हैं, लाइक ये आप देख रहे हैं नेक्स्ट पिक्चर में लंगलेस सैलमेंडर. इट्स लंगलेस सैलमेंडर शोन हियर. ये अपनी स्किन के थ्रू मैक्सिमम रेस्पिरेशन कर सकता है. It has no lungs. That's why maximum gases exchange जो इसमें होगा that is carried out through the skin. And amphibians, they are having a simple skin plan. इस वजह से भी इनके अंदर gases exchange ज़्यादा आसानी से skin के थ्रू हो जाएगा as compared to other groups. For example, frogs, they are having a capillary network that lies in a plane directly beneath their epidermis. इस डायग्राम को देखिएगा. ये फ्रॉग की स्किन की डायग्राम शोन है आपकी टेक्स्ट बुक से ही. अपर पोर्शन एपिडर्मिस, देन पिगमेंटेड लेयर, बेसल मेम्ब्रेन, म्यूकस ग्लैंड्स. इट्स द डर्मिस पोर्शन containing loose fibers as well as dense fibers. But there is a rich network of blood capillaries as well, which is associated with their epidermis or upper part of the skin. So हम बात कर रहे थे कि एम्फीबियंस के अंदर कैपिलरीज के नेटवर्क की वजह से उनका गैसेस एक्सचेंज उनके स्किन के थ्रू भी हो जाता है. और ये लंगलेस सैलमेंडर्स का तो मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज क्यूटेनियस है, ये स्किन के थ्रू होता है. द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स और वेस्कुलर अरेंजमेंट
beneath their skin. It facilitates gaseous exchange between the capillary beds and the environment by both diffusion as well as convection loss जो होता है gases का यहाँ पे. A slimy mucus layer that keeps amphibian skin moist. आपने ये बात पढ़ी होगी कि जो respiratory surfaces हैं अगर वो moist होंगी तो उनसे gases exchange ज़्यादा easily हो सकेगा, उनसे gases exchange ज़्यादा efficiently हो सकता है. A slimy mucus layer that keeps amphibian skin moist and protects against injury as well. It helps in the gaseous exchange in amphibians. तो जो भी ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहे होंगे, इनवर्टिब्रेट्स पे हमने अर्थवर्म की बात की या यहाँ पे एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं, तो इनके लिए जरूरी है कि इनका जो स्किन का सिस्टम है या स्किन का जो पोर्शन है उसको मॉइस्ट रखा जाए, so that they may carry out efficient gaseous exchange. Some amphibians obtain about 25% or more of their oxygen by this exchange, and the lungless salamander carry out all of their gaseous exchange through skin, as well as bucco या buccal pharyngeal region. Amphibians में cutaneous gills lungs के अलावा एक और भी सोर्स है कि वो buccal cavity में मौजूद जो उनकी blood capillaries हैं उनके थ्रू भी कुछ gases exchange करते हैं, that is buccopharyngeal exchange of gases. Gills are respiratory organs that have either, ये गिल्स की बात की गई है वर्टिब्रेट्स के अंदर के गिल्स जो है वो किस तरह से डेवलप हुए हैं. दो बेसिक टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्सटर्नल गिल्स एंड इंटरनल गिल्स. They are respiratory organs which are richly supplied with the blood vessels, kept moist for efficient gaseous exchange, and they are usually very thin. They are the projections of vascularized layer of the epidermis to permit gaseous exchange across thin gill membrane or a very thin layer of epidermis over highly vascularized dermis. कि blood vessels का यहाँ पे मौजूद होना ज़्यादा important है ताकि blood और environment जो कि इस केस में aquatic environment के केस में water है उसके दरमियान gaseous exchange efficiently हो सके. Larval forms of a few fishes and amphibians, they have external gills projecting out from their bodies. Axolotl ये एक फिश राइट साइड पे शोन है जिसके एक्सटर्नल गिल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे. These are the external gills of this fish, richly supplied with blood vessels for efficient gas exchange. वैसे ज्यादातर अडल्ट फिशेस के अंदर क्या होता है, इंटरनल गिल्स मौजूद होते हैं. और ये एक्सटर्नल गिल्स की एक और एग्जांपल यहाँ पे शोन है, एक सैलमेंडर टाइप ऑर्गेनिज्म है आपके पास जो राइट साइड पे बना हुआ है, दैट इज हैविंग एक्सटर्नल गिल्स. गैस एक्सचेंज अक्रॉस इंटरनल गिल्स जो कि फिशेस के अंदर मोर कॉमन है. नेक्स्ट पेज पे इसका जो स्ट्रक्चर भी नजर आता था आपको. इट्स एक्सट्रीमली एफिशिएंट. इट occurs as blood and water move in opposite direction on either side of the lamellae epithelium. गिल्स के गैसेस एक्सचेंज को जरा समझिएगा कि बहुत एफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज होता है जो गिल्स के क्रॉस ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल just have a look over this diagram. ये फिश के इंटरनल गिल्स शो है बेटा. वाटर का पाथवे, वाटर इनलेट और ये वाटर की जो आउटलेट मूवमेंट है गिल्स के ऊपर वो शो की गई है. ये कर्व्स नजर आ रहे हैं गिल रैकर्स जिसके थ्रू गिल्स एम्बेडेड है फिश की स्किन के अंदर. और ये जो आर्च लाइक पोर्शन आपको इसमें नजर आ रहा है, इधर प्रोजेक्टेड ये पोर्शन नजर आ रहा होगा आपको, दैट इज गिल आर्च. ये फिश के गिल का स्ट्रक्चर्स, गिल रैकर्स, गिल आर्च और बेटा फिर उसके साथ मौजूद गिल फिलामेंट्स which are richly supplied with the blood vessels. अगर किसी गिल फिलामेंट को थोड़ा सा एनलार्ज करके मजीद उसको एक्सपैंड करके देखा जाए तो उसमें आपको नजर आएगा कि एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, अगर ये वाटर फ्लो की डायरेक्शन है तो उसमें ब्लड फ्लो की डायरेक्शन उसमें मौजूद ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑपोजिट है. फॉर एग्जांपल if water is moving in this direction of flow past lamellae in layers के क्रॉस अगर जो है वो वाटर इस डायरेक्शन में राइट साइड पे मूव कर रहे हैं इन दिस केस, तो ब्लड की जो सर्कुलेशन होगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो आ रहा है, दैट इज यू कैन सी इट्स मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड और उसके ऊपर जो पासिंग वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें डिफ्यूज्ड ऑक्सीजन जो O2 की फॉर्म में मौजूद होगी वो इजीली डिफ्यूज कर जाएगी इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू दीज ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क. और जो
कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वेन्स के अंदर मौजूद है, वो मूव कर जाएगी इनटू द वाटर। लुक एट हियर वंस अगेन प्लीज, कि ये गिल रैकर्स मौजूद होंगे एट द बेस जिसके थ्रू गिल्स फिक्स्ड है, फिर गिल आर्च जो कि उसको सराउंड कर रहा है, गिल कवर, ब्लड वेसल्स ऑफ द गिल फिलामेंट, गिल फिलामेंट्स इसमें नजर आ रहे हैं जिसके अंदर ये ब्लड वेसल्स आपको नजर आ रही होंगी। अगर इसी को एनलार्ज करें तो ये आपको ब्लड वेसल्स, उनके अंदर मूविंग ब्लड और सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर वो नजर आ रही है। डायरेक्शन ऑफ वाटर एंड मूवमेंट ऑफ ब्लड, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस ऑपोजिट डायरेक्शन का ये फायदा होता है कि गैसेस एक्सचेंज मैक्सिमम हो जाता है एंड दैट एक्सचेंज इज टर्म्ड एज काउंटर करंट एक्सचेंज। इसे काउंटर करंट एक्सचेंज का नाम देते हैं बेटा। हैव अ लुक ओवर दिस डायग्राम प्लीज। दो तरह का फ्लो हो सकता है। अगर कोई सी दो सरफेसेस में मूवमेंट ऑफ फ्लूइड सेम डायरेक्शन में हो रही है, दैट इज को करंट। को करंट में आप देख रहे हैं कि एक्सचेंज 0% से मैक्सिमम 50% तक जा सकता है। बट इन केस ऑफ काउंटर करंट फ्लो, जब एक फ्लूइड एक डायरेक्शन में और दूसरा फ्लूइड दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन उस मूवमेंट के दौरान मैक्सिमम होगा। और इस मैक्सिमम इंटरेक्शन की वजह से, इस मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के साथ कांटेक्ट की वजह से गैसेस एक्सचेंज भी क्या होता है, मैक्सिमम, दैट इज 95 to 100%। तो इस वजह से फिशेस के गिल्स में काउंटर करंट एक्सचेंज होने की वजह से या काउंटर करंट फ्लो होने की वजह से मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज नजर आता है। इसके अलावा बेटे हम बात कर रहे हैं कि ये डिफ्यूजन रेट को बढ़ा तो देता है काउंटर करंट एक्सचेंज, बट दिस काउंटर करंट एक्सचेंज mechanism provides efficient gas exchange by maintaining a concentration gradient between the blood and water that was moving across the capillary bed या capillary bed के थ्रू जो मूव कर रहा है। तो ये गिल्स के हवाले से तक फिर वर्टिब्रेट्स में जिक्र आता है लंग्स का। लंग्स, they are internal sac shaped respiratory organs and the typical lung of vertebrates, they comprise one or more internal blind pouches, blind sacs into which air is either drawn or forced। तमाम वर्टिब्रेट्स के लंग्स आपको एक सैक टाइप नजर आएंगे इस तरह से, जिनमें एयर उसी सैक के अंदर आती है और वहां से ही मूव कर जाती है आउटवर्ड। बट बर्ड्स में एक एक्सेप्शन है। बाकी वर्टिब्रेट्स के लंग्स को कहा गया सैक टाइप, कि उनमें ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज देयर इज ओनली वन ओपनिंग फॉर द एंट्री और एग्जिट ऑफ द एयर। और सैक लाइक स्ट्रक्चर का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें सारी एयर एक साथ एक्सचेंज नहीं हो रही होती। हमेशा कुछ ना कुछ एयर के मॉलिक्यूल यहाँ पे स्टेल एयर के तौर पे बच जाएंगे, पार्शियली एयर एक्सचेंज होगी। लेकिन बर्ड्स जिन्होंने एफिशिएंट लंग सिस्टम, एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप किया है, उनके पास एडेप्टेशन ये है दैट दे हैव टू वे फ्लो। बर्ड्स के अंदर लंग्स में गैसेस एक्सचेंज के लिए टू वे फ्लो मौजूद है। यूं कह लें कि अगर बर्ड्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा जाए जो दोनों एंड्स पे ओपन है, तो वो कहलाते हैं पैराब्रोंकाई, जो बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट बना देते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। क्यों? क्योंकि इसमें सारी एयर जो है वो मूव आउट कर जाएगी, सारी एयर, फ्रेश एयर हमेशा एक्सचेंज होगी और स्टेल एयर नहीं बचेगी जैसा कि सैक लाइक में होता है। वो कैसे? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक सिंपल सी डायग्राम अगर आप ये देखें, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक में अगर एयर आई है तो यहां से एयर ने मूव आउट भी करना है, कुछ ना कुछ स्टेल पार्टिकल्स रहने के चांसेस होंगे इस पॉइंट पे। लेकिन अगर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता कोई कि एक एंड से एयर एंटर हो और दूसरे एंड से एग्जिट कर जाए और यहाँ पे मौजूद ब्लड वेसल्स इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के गिर्द गैसेस एक्सचेंज कर ले, तो फिर कोई भी स्टेल एयर लंग्स के अंदर मौजूद नहीं रहेगी। सेम इज द केस फॉर बर्ड्स, कि बर्ड्स के अंदर ये कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली पैराब्रोंकाई, कि एयर सैक्स में जब एयर आती है और एयर पंप होती है तो ये एक ही दफा पैराब्रोंकाई से गुजर के फिर बाहर चली जाती है। मीन गैसेस एक्सचेंज की जो साइट्स हैं पैराब्रोंकाई, ये एरियाज, ये ट्यूबुलर है और इनमें से हमेशा फ्रेश एयर पास करेगी। फ्रेश एयर के पास करने का मतलब ये होगा कि बर्ड्स के अंदर
जो भी एयर लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के लिए आ रही है वो मैक्सिमम एयर जो है वो बर्ड्स को देगी। सो तमाम वर्टिब्रेट्स में सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बट बर्ड्स के जो लंग्स हैं विच विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ज्यादा एफिशिएंट स्ट्रक्चर को, ज्यादा एफिशिएंट एक्सचेंज को सपोर्ट करते हैं। So birds are an exception in that they have very efficient lungs with a one-way passage, one-way pass-through system through their parabronchi. इसको हम दोबारा से भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी देख लीजिए पैराब्रोंकाई के हवाले से कि उनकी मूवमेंट किस तरह से है। इफ यू आर लुकिंग एट द लंग्स ऑफ बर्ड्स, तो बर्ड्स के लंग्स में एक एफिशिएंट वे ये भी है कि बर्ड्स बहुत ज्यादा एयर रिटेन कर लेते हैं। हॉलो स्केलेटन के साथ साथ वहां पे कुछ एयर सैक्स मौजूद होती हैं जो कि यूजुअली बर्ड्स में 9 की तादाद में होंगी, विच आर यूजुअली 9 इन नंबर। और बर्ड्स के अंदर जो पैराब्रोंकाई मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, इसको मैमल से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। फॉर एग्जांपल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, they remove approximately 25% of the oxygen from air with each breath. हर सांस के साथ हम जो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं that is 25%. Whereas a bird, it removes approximately 90% of oxygen. It extracts 90% of oxygen from the air. ये इतनी ज्यादा ऑक्सीजन कैसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसका एक पाथवे यहाँ पे शोन है बेटे। वैसे तो ये इसकी एयर सैक्स और आपको ये लंग्स इसके शोन है यहाँ पे। इससे रिलेटेड इसकी मैकेनिज्म पढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे शो करना चाहूंगा। The first portion of this video is about the skeletal system of birds, but that is not the concerned topic over here. We are going to focus over the respiratory system, कि बर्ड्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरह से लोकेटेड है। ये इनके फ्लाइट मसल्स या फ्लाइट स्केलेटन मॉडिफिकेशन दिखाई गई है शुरू वाली वीडियो में। यहाँ पे इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम शोन है, विच इज एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ऑल वर्टिब्रेट ग्रुप्स। इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन मोर एफिशिएंटली एज कंपेयर टू अदर वर्टिब्रेट ग्रुप्स। और ये आपको इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये डार्क जो कलर नजर आ रहे हैं आपको, ये है लंग्स पर, और येलो कलर जो स्ट्रक्चर्स हैं सारे के सारे, these are the air sacs. अब ये एयर सैक्स बेसिकली एक पंपिंग स्ट्रक्चर के तौर पे काम करेंगे यहाँ पे एयर को इनटू द लंग्स। तो ये बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देख सकते हैं, पूरी इनकी बॉडी में ज्यादातर एरिया जो बर्ड्स का है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में ये इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम ने कवर किया हुआ है। दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम इट कवर्स मोस्ट ऑफ द एरिया। ये बर्ड्स की ट्रेकिया, लंग्स और उसके साथ मौजूद एयर सैक्स शो की गई है बेटा इस पिक्चर में। एयर सैक्स दे डू नॉट प्ले अ डायरेक्ट रोल इन गैसेस एक्सचेंज, लेकिन वो ज्यादा एयर को इनहेल करने के लिए, बेलोस कहते हैं ब्लो पाइप, जब एयर इनके अंदर आती है तो एयर को ब्लो करने के लिए, पंप करने के लिए यूज होती हैं। एंड दे अलो एज वेल एज कंटीन्यूअस स्ट्रीम ऑफ एयर कमिंग थ्रू द लंग्स, पासिंग थ्रू द लंग्स। और ये बर्ड्स की जो न्यूमेटिक बोन्स हैं जिनके अंदर एयर सैक्स मौजूद हैं वहां तक पेनिट्रेट कर रही होती है समटाइम। जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। ये सर्विकल एयर सैक्स है बर्ड्स के अंदर, इंटीरियर एयर इंटरक्लेविकुलर एयर सैक्स, देन इंटीरियर thoracic air sacs, posterior thoracic air sacs, and last one, total they are 9 in number. अब गैसेस एक्सचेंज इसमें कैसे होगा, जस्ट हैव अ नोट ओवर हियर। जब इंस्पायरेशन होगी तो सबसे पहले ये पोस्टीरियर एयर सैक एक्सपैंड करेंगी। दे एक्सपैंड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब इनहेलेशन हो रही है बर्ड्स के अंदर, तो इनहेलेशन के दौरान साइकिल 1 इनहेलेशन का कैसे चल रहा है ये देखिए, रेड कलर में एयर जो है वो यहाँ पे मूव करती नजर आ रही है। इट्स डायरेक्टली कमिंग टू द पोस्टीरियर एयर सैक्स। ये एक्सपैंड कर जाएंगे इनहेलेशन के बाद, जैसे वालू इनके एक्सपेंशन, ये इनहेलेशन साइकिल है। अब एक्सहेलेशन साइकिल कैसे चलता है, साइकिल 1 में एयर जा रही है लंग्स के अंदर, और लंग्स में ये जो स्ट्रक्चर है थिन स्ट्रक्चर्स, दीज आर पैराब्रोंकाई। इनमें अगर एयर का फ्लो इस तरफ है ना बेटे, तो ब्लड फ्लो बिल्कुल ऑपोजिट है, काउंटर करंट है। काउंटर करंट की वजह से मैक्सिमम एक्सचेंज होगा। लंग्स में एक्सचेंज होने के बाद ये आएगी इंटीरियर एयर सैक्स के पास, और फिर इंटीरियर एयर सैक्स से बाहर, फिर एक्सहेल आउट हो जाएगी साइकिल 2 में। ये इनका एक्सहेलेशन पाथवे है जो कि बड़ा क्लियर है, आपको इससे नजर आ गया। एक दफा फिर से इसको देख लीजिए प्लीज। ये इनहेलेशन पाथवे था इसके अंदर कि ट्रेकिया के अंदर एयर आएगी, ट्रेकिया से डायरेक्ट मूव करेगी इनटू द पोस्टीरियर एयर सैक्स। ये देखिए
पोस्टीरियर एयर सैक्स एक्सपैंड करेंगी और उस एक्सपेंशन के बाद जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी दे विल पंप द एयर इनटू द लंग्स। लंग्स में गई, लंग्स के अंदर पैराब्रोंकाई में गैसेस एक्सचेंज हुआ, ये एक्सेलेशन हो रही है साइकिल 1 में, ब्लड फ्लो और एयर फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फिर इंटीरियर एयर सैक्स के अंदर आने के बाद जो है वो एयर मूव कर जाएगी टू द आउटवर्ड और आउटवर्ड पोर्शन। इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर फंक्शन ऑफ देयर सैक्स। ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई मॉडल में लिया गया कि साइकिल 1 में जब इनहेलेशन होती है, इंस्पायरेशन होती है, तो एयर डायरेक्टली ट्रेकिया ब्रोंकाई से गुजरती हुई एब्डोमिनल एयर सैक, पोस्टीरियर एयर सैक्स में आ रही है, और वो एरो शो कर रहे कि ये एक्सपैंड करेगी। फिर ये जो एयर है, जब ये एक्सपायरेशन के दौरान ये ये जो पोस्टीरियर सैक्स सब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, जस्ट लुक एट दिस, ये एरो शो कर रहे हैं इनवर्ड फोर्स को, ये मसल्स की वजह से, इनकी मसल मूवमेंट की वजह से इन पे फोर्स लगती है, तो पैराब्रोंकाई के थ्रू एयर गुजरती है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है एक्सेलेशन साइकिल 1 में। इंस्पिरेशन के दौरान जब आप देख रहे हैं कि अब नेक्स्ट स्टेज पे साइकिल 2 के दौरान क्या होगा कि एयर जो है वो इंटीरियर एयर सैक्स के अंदर आ जाएगी पैराब्रोंकाई से होती, और लास्ट स्टेज पे पैराब्रोंकाई से जब ये एयर इंटीरियर सैक्स में आ गई है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एयर बैकवर्ड जाने के बजाय आउटवर्ड लंग से बाहर निकल जाएगी। सो दैट इज अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स। मेन पॉइंट इसमें ये था कि इन पैराब्रोंकाई से हमेशा फ्रेश एयर गुजर रही होगी इस पॉइंट से, जो कि लंग्स के अंदर मौजूद है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम बाकी सारे ग्रुप्स की निस्बत ज्यादा एफिशिएंट या ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। फिर वर्टिब्रेट रेस्पिरेटरी, अगर लंग्स की हम बात करें कि वर्टिब्रेट्स लंग्स कैसे डेवलप हुए हैं, तो कहा यह जाता है जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर वर्टिब्रेट्स में एयर सैक्स थी, न्यूमेटिक सैक्स, या जो स्विम ब्लैडर का पोर्शन था, एयर सैक्स कहने के बजाय स्विम ब्लैडर का जो पोर्शन था, उसी की प्रोजेक्शन से बाद में ये एयर सैक्स डेवलप हुए, और उसी की प्रोजेक्शन से लंग्स डेवलप हुए। द एवोल्यूशन ऑफ द वर्टिब्रेट लंग इज related to the evolution of the swim bladder. Swim bladder is an air sac located dorsal to the digestive tract in the body of many modern fishes, जिसके अंदर वो एयर फिल करते हैं स्विम ब्लैडर के अंदर बायंसी प्रोवाइड करने के लिए। ये वो कह रहे हैं कि अगर इनकी गट को देखें फिशेस को, ज्यादा बोनी फिशेस जो मॉडर्न फिशेस जो हैं, तो उनकी डॉर्सल साइड पे आपको एक स्विम ब्लैडर नजर आता है। इसका एवोल्यूशन लंग्स के एवोल्यूशन से रिलेटेड है, या इसी की मॉडिफिकेशन से जो है वो लंग्स डेवलप हुए। Evidences indicates that both lungs and swim bladders, they evolved from a lung-like structure present in primitive fishes that were ancestor of both present-day fishes and tetrapods. कि ancestral fishes में यही जो swim bladder, इसके साथ blood vessels का नेटवर्क होता है रेटिमाइरेबल, वही एक्सपेंड करके इसकी primitive lungs की फॉर्म इसने डेवलप की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। मॉडिफाइड एयर सैक, मॉडिफाइड स्विम ब्लैडर, वही बाद में लंग्स में कन्वर्ट हुआ, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सजेस्ट किया जाता है एनिमल्स के लिए। और मेरे बेटे, these ancestral fishes probably had a ventral sac attached to their pharynx। ये पहले उनमें वेंट्रल सैक थी, ये प्रीवियस स्लाइड्स में अगर आप देखें, न्यूमेटिक सैक जिनको नेम दिया गया यहाँ पे। This sac may have served as supplementary gas exchange organ, या फिर ये buoyancy में भी फिशेस के अंदर हेल्पफुल है। By swimming to the surface and gulping air, surface पे जब ये फिशेस जाती थी तो एयर को गल्प करती थी, तो एयर के थ्रू भी इन्होंने गैसेस एक्सचेंज किया होगा। फर्दर एवोल्यूशन जब इसका हुआ ब्लाइंड सैक का, तो ये 2 डिफरेंट डायरेक्शन में एक्सपैंड कर गया, जैसा कि इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा। इट एक्सपेंडेड इन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और अब हम जानते हैं कि जो हमारे लंग्स मौजूद है वो भी इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 लोब्स की फॉर्म में मौजूद हैं। One adaptation is in the majority of modern bony fishes, where the swim bladder lies dorsal to the digestive tract. पहले अगर ventral पे था तो बाद में dorsal position में आया। The other adaptation is in the form of lungs, which are ventral to the digestive tract. A few present-day fishes and the tetrapods, they have ventral side lungs. ये फिश की एनाटॉमी शो है, और ये जो डायग्राम जिसमें एवोल्यूशन ऑफ लंग्स को शो किया गया, ये पेपर बी में जो फिशेस का पोर्शन है वहां से ये ली गई है, मिलर एंड हार्ले की सोलॉजी से ही।
पॉसिबल सीक्वेंस इन द एवोल्यूशन ऑफ न्यूमेटिक सैक, डायग्रामेटिकली इसको वन बाय वन देख लीजिए. First of all, pneumatic sacs may have originally developed from ventral outgrowth of the esophagus. ये esophagus का पोर्शन नजर आ रहा है, इसकी वेंट्रल साइड पे न्यूमेटिक सैक्स डेवलप हुई होंगी. बी जो डायग्राम है, एक प्रिमिटिव लंग, टेट्रापोड का जो लंग है, इसी की मॉडिफाइड फॉर्म कि इसमें जब रेटिमायरेबल से ब्लड वेसल्स डेवलप हो गई इसमें. चार्ली में, इन मोस्ट बोनी फिशेस न्यूमेटिक सैक्स आर कॉल्ड स्विम ब्लैडर्स. ये एक्सपेंडेड स्विम ब्लैडर्स आपको नजर आ रहे होंगे इस डायग्राम के अंदर. bony fishes में, and swim bladders are dorsal in position to prevent a tendency for the fish to belly up in the water. Pneumatic duct connections to the esophagus are frequently lost and gases transfer from the blood to the swim bladder through a counter current exchange mechanism. फिर यही swim bladder जो है वो modify होके primitive lungs की form में appear हुए. So that was about evolution of lungs in the tetrapods. First of all, we will discuss in detail the remaining vertebrate respiratory system or lungs in the next lecture, inshallah. Thank you so much, bete.